Dear students, today we are going to read the story lesson The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Saroyan. The Summer of the Beautiful White Horse is narrated by 9 years old Aram, a Gargolanian, a member of an Armenian community living among the lush fruit orchards and vineyards of California. The story revolves around the characters who belong to a tribe in Armenia. Murad and Aram are members of the Gargolanian family. The Gargolanian tribes were the natives of Armenia. They were once rich and prosperous. They had their lands. They had to flee from their homeland, maybe due to war. Now they had settled in Assyria. They had lost their land, their property, and everything. Now they were living in abject poverty. They had no money. People wondered where they ever got money enough to keep up with food in their bellies. About the author, William Saroyan, an Armenian American novelist, playwright, and short story writer. He was born on August 31st, 1908 in Fresno, California. He died 18th May 1981 in California, United States. Saroyan decided to become a writer after his mother showed him his father's writings. He started out by publishing short stories in local journals. He was awarded the Pulitzer Prize for Drama and the Academy Award for Best Story in 1940 and 1943 respectively. Theme of the lesson: Honesty is the best policy. A major theme of the story is trust and honesty. There is a conflict between feelings and reason. The moment Murad shows up with the horse, Aram is aware that his family cannot afford a horse and therefore Murad must have stolen it. But he is overcome by his longing to ride a horse. The story highlights the importance of character and reputation. Their tribe is highly respected for being honorable and honest. Aram and Murad decided to return the horse because they want to uphold that reputation. Story: One day back there in the good old days, when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. पुराने दिनों में, मेरे बचपन के दिनों में, जब मैं 9 वर्ष का था और ये दुनिया बहुत सारी ढेर सारी काल्पनिक भव्यता से भरी हुई और जो जीवन जो है बहुत ही आनंददायक और रहस्यमयी सपनों से घिरी हुई थी, यानी राइटर अपने बचपन की बात कर रहा है कि बचपन ही बहुत ही भव्य होता है. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning. मेरा चचेरा भाई मुराद, जिसे परिवार द्वारा सभी लोग उसे क्रेजी समझते थे, सनक से भरा हुआ, full of madness, come to my house. वो मेरे घर आया at 4 in the morning, भोर में सुबह 4 बजे, and woke me up, और मुझे जगाया, tapping on the window of my room, मेरे कमरे की खिड़की को खटखटाते हुए उसने मुझे जगाया. अरम, he said, उसने कहा, अरम, I jumped out of bed and looked out of the window. मैं बिस्तर से उछल पड़ा और बाहर खिड़की के देखा. I couldn't believe what I saw. जो कुछ भी मैंने देखा मैं उसका विश्वास नहीं कर सका. It was not morning yet. अभी पूरी तरह से सुबह नहीं हुई थी. But it was summer. ग्रीष्म ऋतु का समय था. And with daybreak not many minutes. और अभी पौ फटने में ज़्यादा समय नहीं रह गया था. सुबेरा होने में
अभी ज़्यादा समय नहीं रह गया था, पौ फटने ही वाली थी। अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट एनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। लेकिन इतना पर्याप्त प्रकाश था कि मैं ये समझ सकता था कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा था। जो कुछ भी मैं देख रहा था वो हकीकत थी। माई कजिन मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। मेरा चचेरा भाई मुराद एक बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज। मैंने खिड़की से बाहर अपने सर को निकाला और अपनी आंखों को मला। यस ही सेड इन आर्मेनियन। आर्मेनियन भाषा में उसने कहा, हाँ आ जाओ। इट इज ए हॉर्स। ठीक देख रहे हो, ये घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग। तुम सपना नहीं देख रहे। मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड। अगर तुम घोड़े की सवारी करना चाहते हो तो शीघ्रता करो, जल्दी से आ जाओ। आई न्यू माई कजिन मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. मुझे पता था मेरा चचेरा भाई मुराद जो है वो बहुत जीवंत था। जीवन को कैसे जिया जाता है वो जानता था, जितना कोई और नहीं जानता था। जो दूसरे लोग जो गलती से इस दुनिया में आ गए हैं हर एक चीज़ों में, उतना जीवंत नहीं रहते, लेकिन वो बहुत जीवंत था। पर दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। लेकिन जो कुछ मैं विश्वास कर सकता था उससे कहीं ये ज़्यादा था। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस। पहली बात तो ये थी कि मेरी जो प्रारंभिक यादें थीं वो घोड़ों की ही यादें थीं। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड। और मेरी पहली इच्छा जो यही थी कि मैं घोड़े की सवारी करूं। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। और ये बहुत ही आश्चर्यजनक हिस्सा था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। और दूसरी बात यह थी कि हम लोग गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ। और यही वो हिस्सा था जिससे जो कुछ भी मैं देख रहा था उसका मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था। वी वर पुअर। हम लोग गरीब थे। वी हैड नो मनी। हमारे पास पैसा नहीं था। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन। हमारा पूरा समुदाय जो था वो गरीबी में जीवन जी रहा था। एवरी ब्रांच ऑफ द गार्गोलेनियन फैमिली was living in the most amazing and comical poverty in the world. हमारे गार्गोलेनियन परिवार का प्रत्येक समुदाय के जो भी सदस्य थे बहुत आश्चर्यजनक रूप से बहुत अत्यधिक गरीबी में जीवन जी रहे थे। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. कोई नहीं समझ पाता था कहाँ से पर्याप्त पैसा मिले जिससे हम लोग अपना जीवन यापन कर सकें, अपने पेट को पाल सकें। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली। यहाँ तक कि जो हमारे परिवार में जो बुजुर्ग लोग थे वो भी नहीं बता पाते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, और सबसे बढ़ करके जो महत्वपूर्ण बात थी, दो वी वेर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, कि हम लोग अपने ईमानदारी के लिए मशहूर थे। हमारा पूरा समुदाय गार्गोलेनियन फैमिली ऑनेस्टी के लिए, ट्रस्ट के लिए जानी जाती थी। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। 11 शताब्दियों से हम लोग हमारे समुदाय की ईमानदारी के लिए लोग जानते थे। Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world, और यद्यपि जब हम लोग संपन्न थे तो हम लोग जो सोचने के लिए जो हम सोचना पसंद करते थे वो दुनिया के बारे में, सबके बारे में। We were proud first। हम लोग गर्वान्वित थे अपने ऊपर, गार्गोलेनियन परिवार का सदस्य होने के नाते। ऑनेस्ट नेक्स्ट, और दूसरी चीज थी ईमानदारी। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। और उसके बाद हम विश्वास करते थे कि क्या सही है और क्या गलत है। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। और हम में से कोई भी दुनिया में यह सोच नहीं सकता था कि हम किसी दूसरे व्यक्ति का लाभ लें। चोरी करना तो बहुत अलग बात थी। Consequently, even though I could see the horse, और परिणाम स्वरूप हम देख रहे थे उस घोड़े को। So magnificent, even though I could smell it, इतना भव्य, और मैं उसकी महक को सूंघ भी सकता था। It's so lovely, इतना आकर्षक घोड़ा। Even though I could hear it, मैं उसको सुन भी सकता था। Breathing, उसके सांस लेने के स्वर को, आवाज को। So exciting, सब कुछ इतना उत्तेजक था।
I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin मुराद, और मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि इस घोड़े का मेरे चचेरे भाई मुराद से कोई लेना देना था। हम लोग गरीब परिवार के थे और ये घोड़ा कहाँ से आया इसके पास, और विथ मी, या मैं अपने से भी, घोड़ा तो हमारे पास हो ही नहीं सकता था। विथ एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, हमारे परिवार का कोई दूसरा भी सदस्य हो, asleep और अवेक, सोए या जागे हुए, वो सोच भी नहीं सकता था घोड़े के बारे में। बिकॉज आई न्यू माई कजिन मुराद कुडेंट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा चचेरा भाई मुराद जो है वो घोड़ा नहीं खरीद सकता था। एंड इफ ही कुडेंट हैव बॉट इट, अगर उसने घोड़ा खरीदा नहीं था, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, इसका मतलब ये था कि उसने चुराया था उसे। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, लेकिन मैंने इस बात को भी मानने से इनकार कर दिया कि उसने घोड़ा चुराया था, क्योंकि हमारे परिवार का ये हॉलमार्क्स था, ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। नो मेंबर ऑफ द गर्गोलेनियन फैमिली कुड बी ए थीफ, गर्गोलेनियन परिवार का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन एंड देन एट द हॉर्स, मैंने पहले अपने चचेरे भाई की तरफ देखा और फिर घोड़े की तरफ देखा। देयर वॉज ए पायस स्टिलनेस, वहाँ पर बहुत शांत स्थिरता थी। एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, और सभी, घोड़ा और मुराद, जो कुछ भी मैं देख रहा था, सब जगह एक हास्य का भाव था, शांत शुद्ध पवित्र भाव दिखाई दे रहा था। इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, एक तरफ तो ये सब देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, एंड ऑन द अदर फ्राइटेड मी, दूसरी तरफ मैं डर भी गया। मुराद, आई सेड, मैंने कहा मुराद, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया? लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, उसने कहा छलांग मार करके बाहर आ जाओ। इफ यू वांट टू राइड, अगर तुम सवारी करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू देन, और ये सत्य था। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, इसका मतलब उसने घोड़ा चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं रह गया था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज, और वो मुझे घोड़े की सवारी करने के लिए आमंत्रण देने आया था या नहीं आया था, ये मुझे चुनना था। वेल, इट सीम to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, और मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि घोड़े की सवारी करने के लिए घोड़ा चुराना वो उस तरह की एक ही बात नहीं थी, किसी दूसरे चीज की चोरी करना। सच एज मनी, जैसे कि पैसा कोई चुराए तो वो चोरी है, घोड़े की सवारी करने के लिए घोड़ा चुराना वो चोरी नहीं मैं मान रहा था। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, जो कुछ भी मैं जानता था संभवतः वो यही था कि ये चोरी नहीं थी। इफ यू वेयर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कजिन मुराद एंड आई वेयर, अगर आपको घोड़े के प्रति इतना दीवानापन है, इतनी सनक है उसकी सवारी करने की, जितने की मेरे चचेरे भाई मुराद को थी और मुझे, तो मैं इसको चोरी नहीं मानता। इट वॉज नॉट स्टीलिंग, ये चोरी नहीं थी। इट वुडेंट बी बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, और ये तब तक चोरी नहीं मानी जाएगी जब तक कि हम लोग घोड़े को किसी दूसरे को बेच नहीं देते। विच ऑफ कोर्स आई न्यू ही वुड नेवर डू, जो कि वास्तव में था, मैं जानता था कि ऐसा नहीं होने वाला था। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, अच्छा मुझे कुछ कपड़े पहन लेने दो। आई सेड, मैंने कहा। ऑल राइट, ही सेड, ठीक है। बट हरी, आई लीप्ड इनटू माय क्लॉथ्स, और मैंने जल्दी से कपड़े पहने। आई जंप डाउन टू द यार्ड, छलांग मार के नीचे आया फ्रॉम द विंडो, खिड़की से, एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजिन मुराद, और कजिन मेरा जो चचेरा भाई मुराद था, उछल करके मैं घोड़े के पीछे उसके बैठ गया। Now you have learned, I will explain the main point, the horse in the window. Aram and Murad were poor boys belonging to the Armenian Gargolanian family who were known for their honesty. अरम और मुराद जो थे बहुत गरीब लड़के थे, और जो कि आर्मेनियन गार्गोलेनियन फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, और जो कि अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। One early morning when Aram was asleep, Murad sewed up to his window with a beautiful white horse. और एक प्रातः सुबह जब अरम सोया हुआ था, मुराद उसके कमरे की खिड़की के पास आता है और खटखटाता है, और वो देखता है कि वो एक सफ़ेद सुंदर घोड़े पर सवार है। एज दे वर पॉवर्टी स्ट्रिकन, जबकि वे बहुत
गरीबी में जीवन जी रहे थे। अरम कुड नॉट बिलीव दैट द हॉर्स वाज देयर ओन। अरम को ये विश्वास नहीं हुआ कि वो घोड़ा उनका था, हो सकता था। एंड वंडर्ड वेदर मुराद हैड स्टोलन इट, और उसे आश्चर्य हुआ कि कहीं मुराद ने इसकी चोरी तो नहीं की। मुराद इन्वाइटेड हिम फॉर ए राइड अलोंग, मुराद ने उसे निमंत्रित किया कि आ जाओ घोड़े की सवारी करते हैं। आस्क्ड हिम टू मेक इट क्विक बिफोर द वर्ल्ड वोक अप, और उसने कहा कि शीघ्रता करो इसके पहले कि सारे लोग जग जाए। अरम्स अर्लीस्ट लॉन्गिंग हैड बीन टू राइड ए हॉर्स, और अरम की बहुत प्रारंभ से ही ये तीव्र इच्छा थी, उसकी डिजायर थी, लॉन्गिंग थी घोड़े की सवारी करना। तो वो उछल करके खिड़की के बाहर आया और मुराद के पीछे घोड़े पर सवार हो गया। Now we will continue the story. That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. उस साल हम लोग वॉलनट एवेन्यू के इलाके में, ग्रामीण इलाके के किनारे रहते थे। Behind our house was the country vineyards, और हमारे घर के पीछे गांव की सड़कें, वाइनयार्ड्स अंगूर के खेत, ऑर्चर्ड्स बागीचे, इरिगेशन डिचेस सिंचाई की नालियां, एंड कंट्री रोड्स और गांव की सड़कें थीं। इन लेस देन 3 मिनट्स वी वेर ऑन ऑलिव एवेन्यू, और 3 मिनट से भी कम समय में हम लोग ऑलिव एवेन्यू की तरफ आ गए। एंड देन द हॉर्स बिगन टू ट्रॉट, और फिर घोड़े ने तीव्र गति पकड़ ली। ट्रॉट मीन्स स्पीडिंग। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, सुबह सुबह की हवा बहुत ही फ्रेश, सांस लेने में बहुत अच्छा लग रहा था, ताजगी से भरी हुई। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और घोड़ा दौड़ते हुए और हम लोग जो उसकी सवारी कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा और आश्चर्यजनक लग रहा था, बहुत अच्छा फील हो रहा था। माई कजिन मुराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, और मेरा चचेरा भाई मुराद जो था वो मेरे पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा सनक से भरा हुआ मैड मेंबर था। बिगेन टू सिंग, उसने गाना स्टार्ट कर दिया। आई मीन ही बिगेन टू रोर, मेरा मतलब है कि दहाड़ना शुरू कर दिया। एवरी फैमिली हैज ए क्रेजी स्ट्रीक इन इट, प्रत्येक परिवार में कुछ न कुछ सनक होती है। समवेयर एंड माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब, और मेरा चचेरा भाई मुराद जो था वो वास्तविक उत्तराधिकारी था हमारे वंशज में, सनकपन का, सनक लिए हुए, बहुत सनक से भरा हुआ था, मैट था। बिफोर हिम वॉज अवर अंकल खुसरो, और उसके पहले हमारे परिवार में अंकल खुसरो हुआ करते थे। वेरी मैड, वेरी क्रेजी, एंड एनर्मस मैन विथ ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, एक विशाल काय कद के आदमी जिनका बहुत ही मजबूत शक्तिशाली सर था, काले बाल, एंड द लार्जेस्ट माउस्टेक, और बहुत बड़ी मूछें। इन द सैन जैगविन वैली, पूरे सैन जैगविन वैली में। ए मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, और बहुत ही टेम्पर में भयावह, बहुत जल्दी टेम्पर लूज कर देते थे। सो इरिटेबल, इतने चिड़चिड़े, सो इम्पेशेंट, इतने अधीर, दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, कि अपनी दहाड़ से किसी को भी बात करने से रोक देते थे। इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, और कहते थे इसमें कोई नुकसान नहीं है, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाए। दैट वॉज ऑल, बस इतना ही। नो मैटर व्हाट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, ये कोई बात नहीं होती थी कि कोई क्या बात कर रहा होता था, लेकिन अंकल खुसरो ये कह के उसको शांत करा देते दहाड़ के। वंस इट वॉज हिज ओन सन अरक रनिंग 8 blocks टू द बार्बर शॉप, और एक बार ऐसा हुआ कि उनका खुद का, उनका बेटा अरक 8 ब्लॉक की दूरी दौड़ता हुआ आया। अंकल खुसरो बार्बर की शॉप पे बैठे हुए थे, नाई की दुकान में, वेयर हिज फादर वाज हैविंग हिज माउस्टेक ट्रिम टू, जहाँ पे उसके पिताजी अंकल खुसरो मूछों की ट्रिमिंग करा रहे थे। और वो ये बताने के लाया देयर हाउस वाज ऑन फायर, कह रहे उनके मकान में आग लगी हुई है। दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड, ये आदमी सीट पर बैठा बैठा घुर्राया। इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई ध्यान नहीं दिया जाए। द बार्बर सेड, नाई ने कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, अरे श्रीमान बच्चा ये कह रहा है कि आपके घर में आग लगी है। सो खुसरोज रोड, तो खुसरो दहाड़ते हुए बोले, एनफ, पर्याप्त हो गया, इट इज नो हार्म,
मैंने कह दिया ना, कोई नुकसान नहीं है। आई से, मैं कहता हूँ, माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। और मेरा चचेरा भाई मुराद जो था वो प्राकृतिक रूप से स्वाभाविक वंशज इन्हीं का वो कहलाता था। ऑल्दो मुराद फादर वाज जोराब, यद्यपि मुराद के पिताजी जोरब थे, वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, बहुत ही प्रैक्टिकल व्यक्ति थे और उसके सिवा कुछ नहीं, बहुत साधारण सिंपल, अपने दायित्वों को समझने वाले। दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, ऐसा ही था हमारे परिवार में। ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लेश, एक व्यक्ति अपने बेटे का पिता हो सकता है, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि वो उसकी आत्मा, उसके स्वभाव का भी पिता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट, और स्टार्टिंग से ही हमारे समुदाय में ये सनक और घुमक्कड़ जीवन ऐसा स्टार्टिंग से ही था। कैप्रिसियस, सनक से भरा हुआ, फुल ऑफ क्रेजीनेस, वैग्रेंट, इधर उधर निरुद्देश घूमना। वी रोड एंड माई कजिन मुराद सैंग, हम लोग घोड़े की सवारी कर रहे थे और मेरा चचेरा भाई गाना गाने लगा। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, और इसके पहले कोई और जाने, हम लोग गांव की सड़क पर। वेर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स, जहाँ पे कम से कम हमारे कुछ पड़ोसी हो सकते थे। वी बिलोंग, जहाँ पे हम लोग रहते थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हम लोगों ने घोड़े को दौड़ने दिया जितनी देर तक वो दौड़ सकता था। एट लास्ट माई कजिन मुराद सेड गेट डाउन, और अंत में मेरे चचेरे भाई मुराद ने मुझसे कहा उतर जाओ। आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अब अकेले घोड़े की सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, अच्छा तो क्या तुम मुझे अकेले घोड़े की सवारी करने दोगे? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। दैट इज अप टू द हॉर्स, ये तो घोड़े के ऊपर निर्भर करता है। माई कजिन सेड, मेरे चचेरे भाई ने कहा। गेट डाउन, नीचे उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैंने कहा हाँ हाँ घोड़ा मुझे भी सवारी करने देगा। वी शैल सी, चलो देखते हैं। ही सेड, उसने कहा। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विथ ए हॉर्स, ये मत भूलो कि मेरा घोड़े के साथ अपना एक तरीका है। वेल आई सेड, एनी वे यू हैव विथ ए हॉर्स आई हैव ऑल्सो, हाँ हाँ अगर तुम्हारा अपना तरीका है तो मेरा भी अपना तरीका है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड, अरे मैं तुम्हारी सुरक्षा को लेके कह रहा हूँ। लेट अस होप सो, चलो ऐसी उम्मीद करते हैं। गेट डाउन ऑल, उतर जाओ तुम। ऑल राइट आई सेड, मैंने कहा ठीक है, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, हाँ लेकिन याद रखना तुमने मुझे कहा कि मैं भी घोड़े की सवारी अकेले करूंगा। आई गॉट डाउन एंड माई कजिन मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड वज़ाया रन, मैं उतर गया और मेरे चचेरे भाई मुराद ने घोड़े को किक मारी और चिल्लाया वज़ाया रन। द हॉर्स स्टूड ऑन इट हिंड लेग्स, घोड़ा अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। स्नॉटेड, हिनहिनाया, एंड बर्स्ट इनटू ए फरी ऑफ स्पीड, बहुत स्पीड से वहाँ से दौड़ने लगा। एंड वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, और बड़ा ही आकर्षक ये था जो आज तक मैंने दृश्य देखा हो। माई कजिन मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस ए फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, मेरा चचेरा भाई मुराद घोड़े को दौड़ाता हुआ एक सूखे घास से भरे हुए मैदान से टू एन इरिगेशन डिच, और सिंचाई की नाली को फांदता हुआ क्रॉस द डिच ऑफ ऑन द हॉर्स, और उस खाई को, नाली को फांद गया घोड़ा। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, और वो 5 मिनट के बाद वो लौटा, ड्रिपिंग वेट, गीला हो गया था। द सन वॉज कमिंग अप, सूर्य अब निकलने वाला था, ऊपर आ रहा था। नाउ इट इज माई टर्न टू राइड, आई सेड, मैंने कहा मेरी बारी है। माई कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा चचेरा भाई मुराद घोड़े पर से उतर गया। राइड, ही सेड, ठीक है सवार हो जाओ। आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं उछल करके घोड़े के पीठ पर बैठ गया। एंड फॉर ए मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, और एक क्षण के लिए तो वो भय से मैं भर गया, वो कल्पना, क्योंकि मैं पहली बार अकेले घोड़े पर बैठ रहा था। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा हिला ही नहीं। किक इनटू हिज मसल्स, माय कजिन मुराद सेड, मुराद ने कहा उसके मसल्स में किक मारो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, अरे तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप, हमें इसके पहले इसको यहाँ से ले जाना होगा, इसके पहले कि कोई उठ जाए। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने
घोड़े के मसल में किक मारी। वंस अगेन इट रियर्ड, एक बार फिर से वो हिनहिनाया, एंड स्नॉटेड, दहाड़ा और हिनहिनाया। देन इट बिगेन टू रन, और फिर दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, बजाय कि वो सूखे घास के मैदान की तरफ दौड़ते हुए सिंचाई की नालियों की तरफ जाए, द हॉर्स रन डाउन द रोड टू द वाइन यार्ड ऑफ डिकरन, वो अंगूरों के बाग की तरफ दौड़ पड़ा। हेलेबियन वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, जहां वो अंगूरों की लताओं के ऊपर छलांगे मारने लगा। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, वो 7 अंगूर की लताओं पर से छलांगे मार चुका था इसके पहले कि मैं गिर गया। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और फिर वो दौड़ता रहा। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा चचेरा भाई पीछे पीछे सड़क पर दौड़ता हुआ आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। ही शाउटेड, वो चिल्लाया। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें उस घोड़े को पकड़ना है। यू गो दिस वे, तुम इस तरफ जाओ, एंड आई विल गो दिस वे, और मैं इस तरफ से जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, अगर तुम्हें वो मिल जाता है तो बहुत शांतपूर्वक। आई विल बी नियर, उसको पकड़ना, मैं नज़दीक ही रहूँगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कजिन, मैं रोड की तरफ चला गया और मेरा चचेरा भाई वेंट अक्रॉस द फील्ड्स टुवर्ड द इरिगेशन डिच, वो जहाँ सिंचाई की नालियाँ थीं उधर गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स, उसे आधा घंटा लगा घोड़े को पकड़ने में, एंड ब्रिंग हिम बैक, और उसे वापस लाने में। ऑल राइट, ही सेड, जंप ऑन, उसने कहा ठीक है, उछल के बैठ जाओ। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, अब पूरी दुनिया उठ चुकी होगी। व्हाट विल वी डू, आई सेड, मैंने कहा अब हम लोग क्या करेंगे। वेल, ही सेड, ठीक है, वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, हम लोग इसे कल सुबह तक इसे छिपा कर रख देंगे। ही डिडंट साउंड वरीड एंड आई न्यू ही डिड हाइड हिम, वो चिंतित नहीं लग रहा था और मुझे पता था कि उसे छिपा देगा। एंड नॉट टेक हिम बैक, नॉट फॉर ए वाइल एट एनी रेट, और इस क्षण को वो बिल्कुल ही उसे वापस नहीं ले जाएगा। वेयर विल वी हाइड हिम, मैंने पूछा कहाँ छिपाएंगे। आई सेड आई नो ए प्लेस, ही सेड, उसने कहा मैं एक स्थान जानता हूँ। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुम कितने समय पहले इस घोड़े को चुराए थे, मैंने पूछा। इट सडनली डॉन्ड ऑन मी दैट ही हैड बीन टेकिंग दिस अर्ली मॉर्निंग राइड्स, और उसने कहा नहीं नहीं, आज ही सुबह से मैं इस घोड़े की सवारी कर रहा हूँ फॉर सम टाइम, एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, और तुम्हारे पास मैं इसलिए आया था कि तुम्हारी तीव्र इच्छा थी घोड़े की सवारी करने की। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग ए हॉर्स, किसने कहा घोड़े को चुराने के बारे में। ही सेड, एनी हाउ, आई सेड, अरे नहीं, मैंने ही कहा कि घोड़े को चुराया है तुमने। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, तुम प्रत्येक सुबह कब से इस तरह से घोड़े की सवारी कर रहे हो। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, आज की सुबह से पहले नहीं, उसने कहा। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, मैंने कहा तुम सच बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, हाँ नहीं, मैं सच नहीं बोल रहा हूँ, उसने कहा। बट इफ वी आर फाउंड आउट, लेकिन अगर हमें कोई देख लेता है, पकड़ लेता है, दैट्स व्हाट यू आर टू से, तुम्हें यही लोगों को कहना है कि आज ही ये घोड़ा हमें मिला और आज हम इसकी सवारी कर। आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, मैं नहीं चाहता था कि हम लोग दोनों ही झूठे कहलाएं। ऑल ऑफ यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, लोगों को यही बताना कि हम आज सुबह ही ये घोड़ा मिला है। ऑल राइट, आई सेड, ठीक है, मैंने कहा। द मॉर्निंग राइड until you have read. They lived right on the edge of town, Walnut Avenue, and behind their house was the countryside, vineyards, orchards, irrigation ditches, and country roads. They rode till Olive Avenue and trotted their horse there for a while. The air was lovely to breathe, and the feeling of the horse running was wonderful. Murad asked Aram to get off the horse as he wanted to ride alone. Aram requested that he would like to ride alone as well. After Aram got down, Murad kicked his heels and the horse stood on his hind legs and ran off. This was the loveliest thing Aram had seen. Murad returned and it was Aram's turn to ride. Aram got on the horse but did not know how to control the horse. The horse ran in the wrong direction and jumped over 7 vines before Aram fell. They finally found the horse after half an hour. Aram found out that his cousin had stolen the horse for a while and had come to him this morning because he knew how much Aram longed to ride a horse. Now we will continue the story. He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard which at one time had been the pride of a farmer named Fedvigian. और वो घोड़े को एक बान की तरफ, खलिहान की तरफ ले गया
जो सुनसान पड़ी थी अंगूर के बाग की तरफ, जो कभी बहुत ही गौरवान्वित किसान फतेह वैजान की हुआ करती थी। देयर वेर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न, और वहाँ पर जौ की, अल्फा की वहाँ पर खलिहान थी। वी बिगन वॉकिंग होम, और हम लोग घर की तरफ चलने लगे। इट वॉज नॉट ईजी, ये आसान नहीं था। ही सेड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि घोड़ा अच्छे ढंग से व्यवहार करे। एट फर्स्ट इट वांटेड टू टर्न वाइल्ड, रन वाइल्ड, पहले तो वो बहुत ही जंगली पना दिखा रहा था। बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसा मैंने तुम्हें बताया, आई हैव ए वे विथ ए हॉर्स, कि मेरा अपना एक तरीका है घोड़ों के साथ। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग, और मैं कुछ भी उनसे करा सकता हूँ। आई वांट इट टू डू, जो भी मैं चाहता हूँ। हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, तुम कैसे कर लेते हो? आई सेड आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विथ ए हॉर्स, मेरे अपनी समझ है घोड़ों के साथ। ही सेड यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, लेकिन किस प्रकार की समझ है? आई सेड ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, अरे एक साधारण सी, बहुत ईमानदार। ही सेड, उसने कहा। वेल आई सेड, ठीक है, मैंने कहा। आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विथ ए हॉर्स, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी घोड़ों के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाऊं। यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय, अरे भी तुम छोटे हो। ही सेड व्हेन यू गेट टू बी 13, जब तुम 13 वर्ष के हो जाओगे, यू विल नो हाउ टू डू इट, तुम्हें पता चल जाएगा कैसे करना है। आई वेंट होम एंड एट ए हेarty ब्रेकफास्ट, मैं घर पहुंचा और खूब ब्रेकफास्ट किया, नाश्ता किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट, और उस दोपहर अंकल खुसरो हमारे घर आए कॉफ़ी सिगरेट के लिए। ही सैट इन द पार्लर, दलान में वो बैठे, सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, सिप करते हुए, स्मोक करते हुए, और पुराने समय की याद करते हुए। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, और एक यात्री वहाँ आया। ए फार्मर नेम जॉन बायरो, एक किसान जिसका नाम जॉन बायरो था। एन असीरियन हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन, जो अकेले यहाँ रहता था, सीरियन था, लेकिन अकेले होने के नाते उसने आर्मेनियन भाषा सीख ली थी। माई मदर ब्रॉड द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको, मेरी माँ उसके लिए भी कॉफ़ी और टोबैको ले आई। एंड ही रोल्ड ए सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड, उसने भी स्मोक किया। एंड देन एट लास्ट, और अंत में, साइंग सैडली, ही सेड, आहें भरते हुए उसने कहा, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, मेरा सफ़ेद घोड़ा जो पिछले महीने गायब हो गया। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मैं नहीं समझ सकता। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड, मेरे अंकल खुसरो जो है गुस्से में आ गए, चिढ़ गए। एंड साउटेड, और चिल्लाए, इट इज नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है। व्हाट इज द लॉस ऑफ ए हॉर्स, अरे घोड़े के नुकसान क्या नुकसान है? हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हम सभी लोग अपनी घर जमीन सब नहीं खो दिए? व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, घोड़ों के ऊपर क्या रो रहे हो? दैट माइट बी ऑल राइट फॉर यू, अरे तुम्हारे लिए ठीक होगा, ए सिटी डॉलर, तुम शहर के रहने वाले हो। टू से जॉन बैरो सेड, बट व्हाट ऑफ माई सरी, लेकिन मेरी घोड़ा गाड़ी का क्या होगा? सरी, सरी मीन्स घोड़ा गाड़ी। व्हाट गुड इज ए सरी विदाउट ए हॉर्स, बिना घोड़े के घोड़ा गाड़ी का क्या काम? पे नो अटेंशन टू इट, कोई ध्यान न दो। माई अंकल खुसरो रोड, मेरे अंकल खुसरो गुर्रा के बोले। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हियर, मुझे 10 मील पैदल चल के आना पड़ा है यहाँ। जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो साउटेड, अंकल खुसरो ने कहा, तुम्हारे पास पैर है, आए हो तो क्या? माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, मेरे बाएं पैर में दर्द तकलीफ होती है। द फार्मर सेड, किसान ने कहा। पे नो अटेंशन टू इट, कोई ध्यान नहीं दिया जाए। माई अंकल खुसरो रोड, मेरे अंकल गुर्रा के बोले। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, अरे वो घोड़ा मुझे $60 में पड़ा था। द फार्मर सेड, किसान ने कहा। आई स्पिट ऑन मनी, मैं पैसे पे थूकता हूँ। माई अंकल खुसरो सेड, मेरे अंकल ने कहा। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, वे उठे और घर के बाहर चले गए, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, दरवाजे को बंद करते हुए। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी माँ जॉन बायरो को समझाई, अरे ही हैज़ ए जेंटल हार्ट, अरे इनका बड़ा कोमल हृदय है। उसने कहा, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच ए लार्ज मैन, और वो घर की याद आ रही है, गांव घर की याद आ रही है उनके, और इतने विशाल कद के आदमी हैं, गुस्से में आ गए, कोई बात नहीं। द फार्मर वेंट अवे, किसान वहाँ से चला गया। नाई रैन ओवर टू माई कजिन मुराद हाउस, और मैं दौड़ करके अपने चचेरे भाई मुराद के घर गया। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीस ट्री, वो एक पीस ट्री के नीचे बैठा हुआ। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ड विंग ऑफ ए यंग रॉबिन, वो एक युवा रॉबिन पक्षी के घायल पंखों की मरम्मत कर रहा था, उसको देखभाल कर रहा था।
विच कुड नॉट फ्लाई, जो उड़ नहीं सकती थी. ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वो उस पक्षी से बात कर रहा था. व्हाट इज इट, ही सेड, उसने कहा क्या है. द फार्मर जॉन बैरो, आई सेड, मैंने कहा अरे वो किसान जॉन बैरो मेरे घर आया. ही विजिटेड आवर हाउस, ही वांट्स हिज हॉर्स, वो अपना घोड़ा चाहता है. यू हैव हैड इट ए मंथ, और वो कह रहा है कि 1 महीने से घोड़ा गायब है. आई वांट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड इट, और मैं तुमसे एक वायदा चाहता हूँ, तुम तब तक घोड़ा नहीं लौटाओगे जब तक मैं सीख नहीं जाऊंगा सवारी करना. इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइड, अरे तुम्हें सीखने में तो वर्ष लग जाएंगे. माई कजिन मुराद सेड, मेरे भाई ने कहा. वी कुड कीप द हॉर्स ए ईयर, आई सेड, मैंने कहा तो घोड़े को 1 साल के लिए रख लेंगे. माई कजिन मुराद लीप टू हिज फीट, वो खड़ा हो गया. व्हाट, ही रोड, क्या कह रहे हो, वो गुर्राया. आर यू इन्वाइटिंग ए मेंबर ऑफ द गर्गुलेनियन फैमिली टू स्टील, तुम एक गर्गुलेनियन परिवार के सदस्य को चोरी करने के लिए कह रहे हो. द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, घोड़ा उसके सच्चे और सही मालिक के पास जाएगा. व्हेन, आई सेड, कब. इन 6 months एट द लेटेस्ट, 6 महीने के अंदर. ही सेड, he threw the bird into the air, उसने पक्षी को हवा में उछाल दिया. the bird tried hard, almost fell twice, पक्षी ने कोशिश की, लगभग 2 बार गिर गया, but at last flew away, और अंत में उड़ गया, high and straight. early every morning for 2 weeks my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard. 2 सप्ताह तक मैं और मेरा कजिन मुराद घोड़े को हम लोग लेकर के सवारी करते रहे उस निर्जन अंगूर के बागान की तरफ. वेयर वी वर राइडिंग हाइडिंग इट, जहाँ पे हम लोग उसे छिपा रहे थे. एंड रोड इट, जहाँ सवारी करते थे. एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन लीप्ड ओवर ग्रास वाइन्स, और प्रत्येक सुबह जब मेरी बारी आती थी तो वो ग्रेप वाइन्स की तरफ चल देता था, अंगूर के बागान की तरफ. एंड स्मॉल ट्रीज, और छोटे जहाँ पेड़ थे. एंड थ्रू मी, और मुझे गिरा देता था. एंड रन अवे, और भाग जाता था. नेवरथलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माय कजिन मुराद रोड, लेकिन मैं इस उम्मीद में था कि मैं एक दिन सीख ही जाऊंगा जिस तरह से मुराद सवारी कर लेता है. Until we learned John Barrow's house. They hid the horse in a deserted vineyard that had some oats and alfalfa. Every morning they would take the horse for a ride and hide it again. One day John Barrow came to Aram's house to talk to his uncle Khosrow, who was an irritated and loud man and shouted at almost everything. Barrow mentioned his horse that was stolen a month ago and he still had not found it, to which Khosrow wrote, "It is no heart, pay no attention to it." Barrow became irritated and left. Aram told Murad about Barrow's visit and requested him to not return the horse before he had learned to ride it. Murad said that they could not be thieves as their family was known for honesty. They decided that they would return the horse after 6 months. We will continue the story. One morning on the way to Fedwajan deserted vineyard, we ran into the farmer John Barrow, who was on his way to town. और एक सुबह जब हम लोग सवारी कर रहे थे, हमारा मुलाकात जॉन बैरो से हो गया. Let me do the talking, my cousin Murad said. मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, चलो मुझे बात करने दो. I have a way with farmers, मेरा अपना तरीका है किसानों से बात करने का. Good morning, John Barrow, my cousin Murad said to the farmer. मेरे भाई ने किसान से कहा. The farmer studied the horse eagerly. वो किसान घोड़े का अध्ययन बहुत उत्सुकता के साथ कर रहा था, उसको देख रहा था. गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों के बेटे, गुड मॉर्निंग. ही सेड, व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है. माई हार्ट, माई कजिन मुराद सेड इन आर्मेनियन, मेरे भाई मुराद ने कहा आर्मेनियन भाषा में, माई हार्ट. ए लवली नेम, बहुत प्यारा नाम है. जॉन बैरो सेड, फॉर ए लवली हॉर्स, एक खूबसूरत घोड़े के लिए बहुत खूबसूरत नाम है. I could swear it. It is the horse that was stolen from me many weeks ago. और मैं कसम खा कह सकता हूँ ये घोड़ा ठीक वैसा ही है जैसा मेरा घोड़ा था जो कई सप्ताह पहले चोरी कर लिया गया. May I look into his mouth? क्या मैं इसके मुंह को देख सकता हूँ? Of course, मुराद said. मुराद ने कहा हाँ हाँ. The farmer looked into the mouth of the horse. किसान ने घोड़े का मुंह खोल करके देखा. Tooth for tooth, एक एक दांत देखा. He said, I would swear it is my horse. मैं कह सकता हूँ कि मेरा घोड़ा है. इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, और अगर मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता कि तुम लोग किस परिवार से आते हो. द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, तुम्हारे परिवार की ईमानदारी जो है को मैं जानता हूँ, पूरी दुनिया जानती है. एट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, फिर भी ये घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा लगता है. ए सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, और कोई भी संदेह से भरा व्यक्ति वो अपनी आँखों
को विश्वास कर सकता है। गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, गुड डे, ठीक है, शुभ दिन हो। जॉन बायरो माय कजिन मुराद सेड, और मेरे भाई मुराद ने भी गुड डे कहा। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न, और अगली सुबह हम लोग घोड़े को जॉन बायरो के खलिहान की तरफ ले गए और उसे खलिहान में छोड़ दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड, कुत्ते हम लोगों के पीछे पीछे बिना भौंकते हुए आए। द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माई कजिन मुराद, मैंने कहा कुत्ते देखो कुत्ते आ रहे हैं। आई थॉट दे वुड बार्क, मैंने सोचा वे भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, मुराद ने कहा हाँ वो भौंकते अगर कोई और होता। आई हैव ए वे विद डॉग्स, मेरा अपना तरीका है कुत्तों के साथ। माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, मेरे भाई मुराद ने घोड़े के ऊपर अपना हाथ फिराया, प्रेस्ड हिज नोज, उसकी नाक को दबाया, इनटू द हॉर्स नोज, पैटेड इट, थपथपाया, एंड देन ही वी वेंट अवे, और फिर हम वहां से चले गए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन सरी, और उस शाम जॉन बायरो हमारे घर अपनी घोड़ा गाड़ी को लेके आया। एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, और उसने उस घोड़े को दिखाया कि जो चुरा लिया गया था और आज लौटा दिया गया। आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड, और मैं नहीं जानता क्या सोचना चाहिए। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, लेकिन घोड़ा पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका है। बेटर टेम्पर्ड, और बहुत ज़्यादा टेम्पर्ड भी है, जैसे किसी ने इसको ट्रेनिंग दी हो। आई थैंक गॉड, मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ। माई अंकल खुसरो हु वाज इन द पार्लर, मेरे अंकल खुसरो जो पार्लर में थे, बिकेम इरिटेटेड, चिढ़ गए, एंड साउटेड, और चिल्लाए, क्वाइट मैन, शांत हो जाओ आदमी, क्वाइट, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा तुम्हें लौटा दिया गया है। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाए। Returning the horse. One day on their way to hide the horse, they met John Barrow, who was going to town. Barrow talked to them and carefully examined the horse and thought that it looked the same as his horse. But since he knew their parents and was aware of their reputation for honesty, he didn't believe it was his missing horse. The next morning, Aram and Murad returned the horse to the barn in Barrow's vineyard. The dogs followed them all along quietly and they left the place. Barrow came back to Aram's house to tell his mother about his horse and had come back. He was happy to see the horse better temper and it was stronger than ever. Uncle Khosrow again roared, "Quiet man, quiet. Your horse has been returned. Pay no attention to it." Aram, the narrator. Here we will see the character sketch. Aram was aware of the tribe's reputation for integrity. He was fascinated by horses. He knew that Murad had stolen the horse, but justified the action, saying that it was not stealing unless Murad sold the horse for monetary gain. He was jealous of the bond that Murad shared with the horse and hoped to have a similar connection someday. Aram not only narrates the various adventures, incidents, and actions, but also provides useful information regarding the main characters and their behavior. Murad, Aram's cousin. Murad was quite adventurous and had a crazy streak in him. He enjoyed being alive more than anybody else. He loved horse riding and had a special way with animals and even with people. He was able to make them feel calm and safe. He looked after the horse so well that John Barrow found it better tempered and healthier on its return. His love for the horse was evident in the last scene. While parting, he put his arms around the horse and patted it. He was kind too. He treated a young robin which had hurt its wings. Uncle Khosrow. He was a huge man with a large mustache. He had a volatile temper and seemed to be similar to Murad's spirit. He was forced to leave Armenia and felt that his true home and a part of his identity had been stripped away. He felt a lack of belonging to the new land of Central Valley, California, where the Armenians had settled. Nothing seemed to be very important to him anymore, and nothing was too tragic or urgent. Dear students, we have finished the lesson. Thank you for watching the presentation.